Hello students, hope you are doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty. So today the topic is World Trade Organization, that is WTO. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been made. So first is the World Bank website and second is the WTO website, World Trade Organization. So starting with the origin of, you can say the evolution of WTO. So before WTO, अगर हम बात करें जो स्टार्ट है जो WTO स्टार्ट हुआ उससे पहले जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ सो उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी दे वांटेड अ ग्लोबल ट्रेड सो ट्रेड जो था वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद और बहुत सारी जो मेजर्स थे दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बहुत कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिए थे. So the countries wanted to give an early boost to trade liberalization. So इसमें 15 countries ने they started a talk with each other and 1945 में and then the motive was to reduce and bind custom tariffs. सो ये 15 कंट्री से 23 हो गया ग्रुप 23 कंट्रीज हो गई एंड नेगोशिएशंस इनके चलते रहे एंड फाइनली इन 1948 सो द एग्रीमेंट उनका एक 1948 में हुआ और जिसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड जिसे हम कहते हैं गैट सो वो सेटअप हुआ तो वो उन्होंने एक एग्रीमेंट फाइनली कंक्लूड करा 1948 में and initially there were 23 founding members. So as you can see, the group expanded to 23 by the time the deal was signed. The tariff concession, so mainly tariff is the जो आपका tax होता है, so tax concession came into effect by 30th June 1948 through a protocol of provisional application, and so the new general agreement on tariffs and trade. सो ये एक एग्रीमेंट सेट हुआ 1948 में. सो इसे कहते हैं हम गैट. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1948 में अराउंड गैट जो एक एग्रीमेंट था वो फाइनली कंक्लूड करा कंट्रीज ने एंड फ्रॉम 1948 से 1994 तक जो गैट के प्रोविजन से या जो भी इसके अंडर जो एग्रीमेंट थे वो जनरली जो कंट्रीज है वो फॉलो करती थी. सो 1995 में हम एक WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप हुआ. सो फ्रॉम 1948 to 1994 the GATT provided the rules for much of the world trade and proceeded over periods that saw some of the highest growth rates in the international commerce. So जो भी GATS के rules थे वो countries follow करती थी 1994 तक. So many efforts were taken to reduce tariffs. So जितना टैक्स कम हो जाए जो भी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं सो इट वाज अचीव्ड थ्रू सीरीज ऑफ मल्टीलेटरल नेगोशिएशन. सो कंट्रीज जो भी इन्वॉल्व थी गैट में सो उनके बीच में नेगोशिएशंस होते थे. तो जनरली मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस होते थे जिन्हें हम ट्रेड राउंड्स भी कहते थे. सो ट्रेड राउंड्स जो एक 8th ट्रेड राउंड था जिसे हम कहते हैं यूरुग्वे राउंड. सो जो 8th राउंड था ट्रेड राउंड जो 1986 में स्टार्ट हुआ था 1994 में कंक्लूड हुआ एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ WTO एंड अ न्यू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स. सो WTO सेटअप हुआ 1995 में एंड न्यू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स कंट्रीज ने डिसाइड करे फॉर द ग्लोबल ट्रेड. सो 1995 तक इट वाज ऑलमोस्ट 123 कंट्रीज. जो 15 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था 23 हुई देन एट 1995 वो ऑलमोस्ट 123 कंट्रीज हो गई थी WTO के अंडर. एंड जो WTO के एग्रीमेंट सेटअप हुए थे 1995 में सो इट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो ऑल ट्रेड it almost covered, so it covered almost all the trade from toothbrushes to pleasure boats, from banking to telecommunication, from genes of boiled rice to AIDS treatment. So everything was there. So it was quite simply the largest trade negotiation इसको कह सकते हैं हम after World War II or in the history of trade. So it was one of the largest trade negotiation. So generally countries के बीच में negotiations होते थे
सो वन जो नेगोशिएशंस का रिजल्ट आया 1995 में, उसमें आपके न्यू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स सेटअप हुए और डब्ल्यूटीओ सेटअप हुआ. So the WTO creation on 1st January 1995 marked the biggest reform of international trade, whereas GATT जो WTO से पहले जिसके एग्रीमेंट्स चल रहे थे, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, सो मेनली वो डील करता था गुड्स में. सो द GATT mainly dealt with trade in goods. The WTO and its agreements also cover trade in services and intellectual property. So WTO के अंडर जो agreements थे, वो apart from goods, trade in goods, they also covered trade in services and intellectual property. The birth of WTO also created new procedures for settlement of disputes. So अगर countries के बीच में while trading उनके बीच में कोई dispute होता है, तो WTO also take care of the dispute settlement of these disputes. So GATT में it was mainly trade in goods, so it dealt with trade in goods, but WTO में along with trade in goods there was also trade in services and intellectual property. And अगर कोई dispute होता है तो उसके लिए settlement of dispute mechanism was also there under WTO. So WTO was born out of negotiations. WTO जो सेटअप हुआ था वो कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं, जिसे हम मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं. सो उसकी वजह से सेटअप हुआ था. सो वी कैन से द WTO वाज बोर्न आउट ऑफ नेगोशिएशंस एंड एवरीथिंग द WTO डज इज द रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशन. सो WTO में जो भी एग्रीमेंट्स आते हैं नए या फिर जो भी एग्रीमेंट्स हैं, वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. सो द बल्क ऑफ द WTO करंट वर्क कम्स फ्रॉम, जो भी WTO के अंदर एग्रीमेंट्स हैं, दे कम फ्रॉम 1986 से 1994 नेगोशिएशन यूरोगे राउंड. जो भी यूरोगे राउंड के जो एग्रीमेंट्स हैं वही अल्टीमेटली बेस है WTO का. एंड अर्लियर नेगोशिएशन जो गैट के हैं. सो जो गैट के सारे एग्रीमेंट्स हैं, जो भी और जो यूरोगे राउंड से जो एग्रीमेंट्स निकले, दे आर द फाउंडेशन ऑफ WTO. The WTO is currently the host to new negotiation. उसके अलावा कुछ जो नए नेगोशिएशन है, नए एग्रीमेंट, वो है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. सो लॉन्च इन 2001. So where countries have faced trade barriers, wanted them lowered, the negotiation have helped to open markets for trade. So along with GATT and Uruguay round, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इज ऑल्सो देयर, जिसमें न्यू नेगोशिएशंस हुए और न्यू एग्रीमेंट्स आए. फिर द प्राइमरी पर्पस अगर हम WTO को देखें, दैट इज टू ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज. ओपन ट्रेड. द WTO प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स. सो इसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स विच एम्ड एट रिड्यूसिंग ऑब्स्टेकल टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड हो उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो और उसको रिड्यूस करे, ये WTO का मेन वन ऑफ द पर्पस. एंड ensuring a level playing field for all, thus contributing economic growth and development. The WTO also provide a legal and institutional framework for the implementation and monitoring of these agreements. तो जो भी इसके अंदर एग्रीमेंट्स हैं उनका लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, and as well as settling disputes arising from interpretation and application. So अगर कोई dispute arise होता है उसको solve करना. So अभी at present 164 members are there, जिसमें से 117 are developing countries. And the founding and guiding principle WTO का है, that is open borders, non-discriminatory treatment. सो कोई कंट्रीज के बीच में कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. हर कंट्री को दूसरी कंट्री के जो भी WTO का मेंबर है उसको इक्वली ट्रीट करना होता है. एंड अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी इन द कंडक्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. दीज आर द फाउंडिंग एंड गाइडिंग प्रिंसिपल. अब मेन एक्टिविटीज की बात करें WTO की. सो WTO वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद गैट आपका सेटअप होता है. गैट के बाद 1995 में WTO सेटअप होता है. WTO जो है, गैट जो है, दैट इज इट इज जो एग्रीमेंट्स हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. और WTO जो सेटअप होता है यूरोगे राउंड के बाद, जो न्यू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं और WTO आपका सेटअप होता है. उसके बाद WTO के जो कुछ मेन एक्टिविटीज की बात करें, सो पहले है नेगोशिएटिंग द रिडक्शन ऑफ elimination of obstacle. So trade में there should not be any obstacle.
सो ऑब्स्टेकल कैसे हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, तो उस टैक्सेस को रिड्यूस करें, कोई भी बैरियर अगर है अपार्ट फ्रॉम टैरिफ उसको रिड्यूस करें, एग्रीइंग ऑन रूल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंटी डंपिंग के एग्रीमेंट्स बनाएं, सब्सिडीज से रिलेटेड एग्रीमेंट, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड को कोई बैरियर नहीं प्रोवाइड करें। फिर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग। अब जो एग्रीमेंट्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना एंड मॉनिटर करना। द एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीड रूल्स फॉर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विसेज है एंड ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको एडमिनिस्टर करना सारे रूल्स को, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सो कोई पॉलिसी किसी मेंबर कंट्री की बहुत ही हार्श तो नहीं है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंपोर्ट के लेके बहुत ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं लगाए हैं उन्होंने, सो उसको रिव्यू करना, मॉनिटर करना ट्रेड पॉलिसीज। सेटल डिस्प्यूट्स, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द मेंबर कंट्रीज उसको सॉल्व करना। बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, तो कोई डेवलपिंग कंट्री है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। सो कंडक्टिंग इकोनॉमिक रिसर्च, अगर कोई डेटा है, डेटा कलेक्ट करना या फिर रिसर्च है फॉर मेंबर कंट्रीज उसको कंडक्ट करना, एंड एक्सप्लेनिंग टू एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट डब्ल्यूटीओ, इट्स मिशन एंड एक्टिविटीज, दैट इज द लास्ट एक्टिविटी। तो लेटेस्ट अपडेट में अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक जजमेंट आया है अभी सितंबर में ही, जिसमें जो डब्ल्यूटीओ ने एक जो डिस्प्यूट था बिटवीन यूएसए एंड चाइना, सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में, इट वाज इन न्यूज, सो 2018 में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट होता था वो दैट इज इन ह्यूज अमाउंट टू यूएसए। सो यूएसए ने देखा कि हमारे पास एक्सपोर्ट चाइना की तरफ से बहुत है लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं है चाइना को, सो देयर वाज अ डेफिसिट। सो यूएस ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्सेस बहुत सारे लगा दिए जिन्हें टैरिफ्स कहते हैं। सो चाइना ने डब्ल्यूटीओ में उस केस को ले गए, एंड अभी जो जजमेंट आई सितंबर में दिस मंथ ओनली, कि ट्रम्प्स चाइनाज टैरिफ वायलेट ग्लोबल ट्रेड रूल्स। सो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ चाइना के एक्सपोर्ट पे लगाए गए थे दैट हैज वायलेटेड द ग्लोबल ट्रेड रूल्स, जो भी डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं। सो इसमें एक असाइनमेंट जो सिक्स्थ आपका है, सो यू हैव टू डिस्कस द टैरिफ implemented by USA on China's export from 2018 to 20. So you have to write down 2018 में कितना अमाउंट एक्सपोर्ट, कितना बिलियन में जो एक्सपोर्ट था उस पर टैरिफ लगाया, देन व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ चाइना when USA did this, and then after 2018 2019 what were the further tariffs from the USA side, and then the final tariff in 2020. So you have to tell the sequence and what all steps were taken by Trump administration from 2018 to 2020 with respect to the export of China. So that is your assignment. So you'll get the link by the evening, and then you can submit the assignment. So अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट्स की। सो डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, किस तरह के वो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो मेनली डब्ल्यूटीओ में ये नेगोशिएशंस होती हैं अमंग द कंट्रीज और फिर वो एग्रीमेंट्स बनते हैं। सो एट द हार्ट ऑफ WTO are the WTO agreements. So negotiated and signed by bulk of world's trading nation, which are जो ये agreements हैं, they are signed by the countries, member countries. These documents provide the legal ground rules for international commerce. So they are essentially contracts. ये जो agreements हैं, they are contracts between the government of member countries. So these agreements, they bind the governments to keep their trade policies within the agreed limit. So they mutually decide करते हैं इस एग्रीमेंट में कि क्या उनके रेट्स रहेंगे, अगर कोई इंपोर्ट पे अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो किस तरह का रेस्ट्रिक्शन रहेगा या एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है। So all the rules are decided in these agreement. Although negotiated and signed by countries, the goal is to help producers of goods and services, exporters, importers conduct their business while allowing governments to meet social and environmental objectives. So that is the goal.
जो एग्रीमेंट्स हैं दे इंक्लूड इंडिविजुअल कंट्रीज कमिटमेंट टू लोअर, मेन पर्पस क्या है, टू लोअर करना टैक्सेस को, कस्टम टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, एंड टू ओपन एंड कीप ओपन सर्विसेज मार्केट. सो दीज एग्रीमेंट्स, ये जो WTO के एग्रीमेंट्स हैं, दे आर ऑफन कॉल्ड WTO ट्रेड रूल्स. दीज आर द रूल्स which are set up by the member countries, and the WTO is often described as rule based, a system based on rules. So that is why WTO को हम ये भी कहते हैं rule based. It is a rules based. But it is important to remember that the rules are actually agreements. So ये जो agreements हैं, they are generally the rules which are fixed by the countries which are involved in the trade. So generally 16 हमारे पास different multilateral agreements हैं WTO के, और दो हमारे पास plurilateral agreements हैं. तो डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं एंड प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स. सो दिस इज द लिस्ट. सो यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन गुड्स, अभी गुड्स की बात हो रही है. देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसको हम कहते हैं GATS. फिर आपके पास ट्रेड इन गुड्स की बात करें, ट्रेड इन सर्विसेज, एंड देन यू हैव अपार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको हम कहते हैं TRIPS, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है आपका WTO के एग्रीमेंट में. देन यू हैव ट्रेड इन सर्विसेज जिसे हम कहते हैं GATS, GATS, एंड देन ट्रेड इन गुड्स. ट्रेड इन गुड्स में आपके पास नॉर्मल GATT के जो रूल्स हैं, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स. देन एग्रीकल्चर पे एग्रीमेंट होता है. देन यू हैव, अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी कंट्री में तो कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं ट्रिम्स, TRIMS, ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स. देन एंटी डंपिंग एग्रीमेंट है. देन यू हैव इम्पोर्ट लाइसेंसिंग procedure, agreement on import licensing, agreement on subsidies. So these are the different agreements, multilateral agreements हैं ये सारे. So पहला है trade in goods, उसके अंदर ये सारे हैं. Then you have trade in services, then you have intellectual property right, and then there are plurilateral trading agreements which are related to civil aircraft and government procurement. So जो मेजर जिन पे ज़्यादा फोकस रहता है वो एग्रीमेंट्स हम डिस्कस करते हैं. So first हमारे पास आता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर. सो इसका मेन पर्पस क्या है, दैट कि इन्वेस्टमेंट मेजर जो होने चाहिए वो ऑलरेडी फिक्स्ड होने चाहिए एंड उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए. सो दिस एग्रीमेंट नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द यूरोगे राउंड applies only to measures that affect trade in goods. So trade in goods, you can see this trade in goods. This comes under trade in goods, not in services. So recognizing that certain investment measure can have trade restrictive and distorting effect, it states that no member shall apply a measure. कोई member ऐसा कोई investment measure ना apply करे जो which is prohibited under the provisions of GATT. So जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मेजर नहीं होना चाहिए जो उनकी तरफ से अप्लाई हो विच इज प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ गैट. सो द एग्रीमेंट कंटेन्स transitional arrangements allowing members to maintain notified trims. So इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो होने चाहिए वो ऑलरेडी फिक्स्ड होने चाहिए. एग्जाम्पल्स ऑफ इनकंसिस्टेंट मेजर्स क्या रहते हैं जनरली, जैसे ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है, लोकल कंटेंट. तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स आती है जैसे जिसमें आप ट्रेड बैलेंस करना चाहते हैं तो इसलिए आप अपना इंपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं या एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं, इंपोर्ट डिक्रीज कर देते हैं, सो ऐसे मेजर्स नहीं होने चाहिए. So there should be no measure related to investment which is prohibited by the provisions of GATT. So the objective of the agreement, ये जो TRIMS आपका है, trade related investment measure. So the objective of this agreement is, as defined in its preamble, include expansion and progressive liberalization of world trade and to facilitate investment across international frontiers. So जितनी इन्वेस्टमेंट आप अमंग द कंट्रीज हो उसको प्रमोट करना, so as to increase the economic growth of all trading partners.
This agreement is not concerned with the regulation of foreign investment. So एफडीआई से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें. इसमें नॉर्मल है कि कोई इन्वेस्टमेंट मेजर ऐसा नहीं होना चाहिए which is prohibited by the provisions of GATT. So it focus on investment measure that infringe and undermine GATT के आर्टिकल्स हैं, that is discriminate between imported and exported products and create import and export restrictions. So ऐसा कोई measure नहीं होना चाहिए. That is your TRIMS, Trade Related Investment Measure Agreement. उसके बाद आपका होता है ट्रिप्स. ट्रिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आपके पेटेंट्स हैं, कॉपी आपके ट्रेडमार्क्स हैं, सो इनका कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए अमंग द कंट्रीज. सो देयर हैज टू बी अ फिक्स रूल्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So the WTA agreement on trade related aspect of intellectual property rights, जैसे हम कहते हैं ट्रिप्स, negotiated during Uruguay round, introduce intellectual property rules into the multilateral trading system for the first time. So अभी तक आपका ट्रेड इन गुड्स होता था, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स भी आ गए. So the TRIPS agreement plays a critical role in facilitating trade in knowledge and creativity. इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है, सो उसको सॉल्व करें. तो एग्रीमेंट इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज, it refers to the creation of mind. These creation can take many different forms such as कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, कोई साइन है, कोई सिंबल है, कोई नेम है, यूज इन कॉमर्स, डिजाइन एंड इन्वेंशन. सो दिस इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So government grant creators the right to prevent others from using their invention, design or creation. So अगर आपका कोई पेटेंट है तो गवर्नमेंट आपको कुछ राइट्स देती है जिससे आप उसका यूज जो है, जो भी आपने इन्वेंशन करी है उसको यूज का प्रिवेंट कर सके. सो उसके लिए आप कुछ, अब अगर आप कुछ अमाउंट चार्ज करना सकते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये भी ऑप्शन देती है या फिर आपको राइट देती है टू यूज दैट राइट टू नेगोशिएट पेमेंट इन रिटर्न फॉर अदर यूजिंग देम. सो दीज आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये जो आपके पास राइट्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो दीज राइट्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो दे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स. बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फिल्म्स, दे कम अंडर कॉपीराइट. इन्वेंशंस हैं, उसको आप कैन बी पेटेंटेड. ब्रांड नेम्स हैं, प्रोडक्ट लोगोस हैं, दे कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क्स. सो ये आपको राइट देती है गवर्नमेंट, और इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो दैट कम्स अंडर ट्रिप्स. सो प्रॉपर रूल्स होने चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के. So the WTO TRIPS agreement is an attempt to narrow the gap in the way these rights are protected. So ये जो आपके पास राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं, पेटेंट कर सकते हैं, ये राइट प्रोटेक्टेड होने चाहिए एंड एनफोर्स अराउंड द वर्ल्ड टू ब्रिंग देम अंडर कॉमन इंटरनेशनल रूल्स. It establishes minimum standards of protection and enforcement that each government has to give to the intellectual property held by nationals of fellow WTO members. So standards of protection and enforcement that each government has to give to the intellectual property held by the nationals of fellow WTO members. थर्ड हमारे पास एग्रीमेंट आता है एंटी डंपिंग. सो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट. सो डंपिंग इज, आपको पता है कोई भी अगर कंट्री कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है और उसका जो प्राइस है वो नॉर्मली कम है जो प्राइस वो अपनी कंट्री में चार्ज कर रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डंपिंग. So if a company exports a product at a price lower than the price it normally charges on its own home market, it is said to be dumping the product. So WTO agreement does not pass any judgment. WTO की तरफ से कोई judgment नहीं है, but it focuses on how government can or cannot react to dumping. So अगर country को लगता है this dumping is affecting their growth, then they can take actions. WTO agreement allows governments to act against dumping where there is a genuine injury to the competing domestic industry. So अगर इंडिया को लग रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो डंपिंग के अंडर आते हैं and that is causing harm to the domestic industry, then they can take action. So as per WTO, they can react to this dumping. Each party shall accord immediately and unconditionally to services. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है that is GATS.
तो द फोर्थ है हमारे पास, सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो पहले आपने देखा ट्रेड इन गुड्स, जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट से ट्रिप्स है, देन यू हैव which is related to intellectual property, that is TRIPS, and which is related to trade in goods, जिसमें TRIMS आता है investment measures से related, and then you have general agreement on trade in services। अब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है और कोई भी सर्विस है, सो उसके जो भी उसकी फैसिलिटीज होती हैं या जो भी जो प्रोवाइडर्स हैं उसके, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस एग्रीमेंट के अंदर। सो ईच पार्टी शेल अकॉर्ड इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली टू सर्विस and service providers of any other party treatment no less favorable। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को आप फेवर कर रहे हैं किसी को नहीं कर रहे हैं। सो देर शुड बी नो ट्रीटमेंट लाइक दिस टू द सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। फिर हम लास्ट डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज and intellectual property right, the focus is also on dispute settlement। so WTO का अलग से mechanism है for dispute settlement। so if there is any dispute between the member countries, then WTO follow a procedure for dispute settlement। so dispute settlement is the central pillar of multilateral trading system। the system is based on clearly defined rules with timetables and for completing a case। The disputes in WTO are essentially about broken promises। So dispute आपका तभी होता है जब ऑलरेडी जो रूल्स फिक्स्ड हैं उसको फॉलो नहीं करती है कंट्रीज। सो अगर हम देखें जो WTO का शेड्यूल है, सो यू कैन सी 60 डेज अगर कोई डिस्प्यूट होता है 60 डेज में कंसल्टेशन या मीडिएशन के थ्रू दे कैन सॉल्व। अगर वो नहीं होता है तो देन आफ्टर 45 डेज पैनल सेटअप होता है एंड पैनलिस्ट आर अपॉइंटेड जो उस केस को देखेंगे। देन 6 मंथ्स के अंदर फाइनल ड्राफ्ट, पैनल ड्राफ्ट वो पार्टीज को सबमिट होता है। जो भी पैनलिस्ट हैं वो ड्राफ्ट बनाते हैं, फाइनल पैनल रिपोर्ट जो होती है वो पार्टीज को देते हैं। सो अगर पार्टीज को कोई अपील नहीं करती है तो 3 वीक्स में आफ्टर 6 मंथ्स फाइनल पैनल रिपोर्ट टू WTO मेंबर्स। सो जब पार्टीज को दी, इफ दे आर ओके देन वो WTO मेंबर्स को देते हैं एंड 60 डेज में आफ्टर 3 वीक्स 60 डेज में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अडॉप्ट द रिपोर्ट और फिर उनका जजमेंट आ जाता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा जजमेंट आया चाइना एंड USA के कंटेक्स्ट में। सो टोटल जनरली 1 ईयर होता है विदाउट एनी अपील, बट इन केस अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ पैनल मेंबर्स, सो देन देयर इज they can appeal to WTO। so उसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, that is 1 year 3 months। so then appeals report and dispute settlement body adopts appeals report। so अगर वो अपील कर देते हैं then there is a slight delay in the dispute settlement mechanism। so इसमें आज लेक्चर में हमने डिस्कस करा दी जब WTO सेटअप कैसे हुआ। पहले आपका गैट हुआ है 1948 में, देन गैट के जो एग्रीमेंट्स हैं दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो जो भी इसके रूल्स थे वो अभी तक फॉलो होते थे। 1995 में WTO सेटअप हुआ एंड नए एग्रीमेंट्स उसके अंदर आए। WTO में देर बहुत सारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, अराउंड 15 मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं। सो विच आर रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ट्रेड इन गुड्स की बात करें तो एंटी डंपिंग है आपके पास इन्वेस्टमेंट मेजर से रिलेटेड है। देन यू हैव ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है, एंड देन यू हैव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। सो मेजॉरिटी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हमने डिस्कस करे अभी तक। ट्रेड इन गुड्स की बात करें, ट्रेड इन सर्विसेज की बात करें और ट्रेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ रीजनल एग्रीमेंट्स जो apart from multilateral there are also some regional agreements। so that वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। so for now you go through the video and see the assignment and you'll get the link and then you can submit the assignment by evening। that is all for today, thank you so much।